lecture we have studied about the inbreeding and outbreeding, that is the breeding techniques. Now we'll be further talking about the same kind of method in which we will be talking about some else method, and that is artificial insemination, and the second one is MOIT. Okay, so let us discuss this in detail. Okay, now so first here we'll be talking about the method called artificial insemination. Okay, now what do you mean by artificial insemination? First of all, तो artificial insemination का मतलब क्या है कि किसी भी exotic male animal का, exotic मतलब which is really of good quality, या तो फिर foreign breed है, ठीक है, किसी भी foreign breed का या exotic male जो होता है animal में, उसका semen collect करके उसे transport किया जाता है जहां पे भी requirement है. मतलब whole animal is not needed to be transported, just semen of that particular animal. और उसे फिर इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली उसी ब्रीड की या तो फिर दूसरे ब्रीड की फीमेल में, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो ओवर हियर द सीमेन ऑफ एक्सोटिक मेल एनिमल is collected. Okay, it is collected, it is stored, and then it is transported. कहाँ पे? Wherever it is required. Let's say कि कोई ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का बुल है and we need the semen of that bull. So we cannot bring that whole bull over here, right? So instead of that, we can have the semen of that bull, right? So over here, that is transported, right? And I'll just put a point over here that how is the semen stored? So semen is stored by a method called cryopreservation. Okay, by a method called cryopreservation. Now what is this cryopreservation? This cryopreservation is known as to be a storage method in which the sample, it can be any sample, it can be semen, it can be ova, it can be embryo, right, is stored at, remember the temperature, very important, minus 196 degrees Celsius temperature in liquid nitrogen. Okay, so you can say this is to store the sample at temperature, very important, minus 196 degrees Celsius temperature in liquid nitrogen. तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन, या तो फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पे ये स्टोर होता है उस जगह को हम कहते हैं क्रायो बैंक. सीड्स भी स्टोर होते हैं, सीमेंट स्टोर होता है, पोलन ग्रेन स्टोर होती है, मतलब ऑल द थिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस वे एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ क्रायोप्रिजर्वेशन. एनीवेज, तो हम वापस यहाँ पे आते हैं, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है. देन ऑनवर्ड्स, सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट. देन दैट सीमेन इज आर्टिफिशियली इंजेक्टेड in the female animal. जो भी ब्रीड का, ये सेम ब्रीड का भी फीमेल ले सकते हो या फिर डिफरेंट ब्रीड का भी हम फीमेल ले सकते हैं, तो वो फीमेल एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? सो लेट्स से व्हाट आर द एडवांटेजेस. ओके, the advantage is what? The whole animal is not needed to be transported, only the semen is transported, right? So you can say that semen or the quality semen is transported. So there is no need of transporting the whole animal from one place to the another. It just needs the particular semen only, right? So that is the biggest advantage. And it is done artificially. So whenever that particular female animal is ovulating, right, वो तो पता चल ही जाता है जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंटल फेज में होता है,
तो उस टाइम पे हम उस सीमेन को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम डिजायरेबल टाइम पे हम ये चीज लाइक एट अ डिजायरेबल कंसिक्वेंसेज एंड एट डिजायरेबल टाइम द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन। सो यू कैन डू इट एट द डिजायरेबल टाइम एंड consequences. So in short, ये है artificial insemination. Now next हम बात करते हैं second method, that is what you call it as MOIT. And for MOIT, I'll write everything in capital. Now this is something really very important. MOIT का मतलब होता है, I'll just write it a bit low so that you can see it. So the second method is known as MOIT. Okay. Now what do you mean by MOIT? MOIT का full form होता है Multiple Ovulation Embryo Transfer. Okay. The full form is Multiple Ovulation Embryo Transfer. ये इसका फुल फॉर्म है. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, नाउ व्हेन इट इज डन, रिमेंबर दैट इट इज डन फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट. चलो, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड इंप्रूवमेंट. तो हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अगर आपको सपोज कोई एनिमल्स कम हो रहे हैं, लेट्स से कि मेरे घर पे एक अच्छी सी काव है, राइट, बट कहीं कैसे कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं कि उसके बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो ओव्यूलेट प्रॉपर नहीं कर रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती है वगैरह. ठीक है, तो अब मुझे उसके ज्यादा नंबर चाहिए, तो उसका हर्ड साइज मुझे इंक्रीज करना है. तो दिस मेथड इज यूज्ड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ हर्ड. हर्ड का मतलब है क्वांटिटी वाइज जो अगर हमें इंक्रीज करना है किसी एनिमल के हर्ड को, ग्रुप को, तो वी विल बी यूजिंग दिस मेथड. So you can say that to increase the quantity of herd, number of animals. Okay, this method is done. Okay, this is particularly done in cow, goat, मतलब कैटल्स टाइप के जो होते हैं, इवन डॉग्स में भी कर सकते हैं, कैट्स में भी कर सकते हैं. तो जनरली जो एनिमल ब्रीडिंग मतलब जो हम एनिमल हस्बेंड्री में जो ज्यादातर एनिमल्स यूज करते हैं, नॉट बर्ड्स ओवर हियर, एनिमल्स यूज करते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ दिस मेथड इज डन. सबसे पहले फीमेल काउ या फीमेल, लेट्स से हम यहाँ पे काउ एज अ एग्जांपल लेते हैं, या फीमेल एनिमल जो होता है उससे इट इज इंजेक्टेड विथ FSH. ओके, व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. सो इट इज इंजेक्टेड विथ follicle stimulating hormone. अब जैसे ही इसको हमने फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इंजेक्ट किया है, द सेम टाइम इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मल्टीपल एग्स. ओके, सो जब भी ये ओव्यूलेशन करेगी, इट विल प्रोड्यूस मोर एग्स, या तो फिर इट विल मल्टीपल ओव्यूलेट, या तो फिर मल्टीपल ओव्यूलेशन करेगी, और ये इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में रिपीट होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन इन्फ्लुएंस. ओके, सो ओवर हियर it will produce more number of eggs. Like let's say per cycle it will produce 6 to 8 eggs, right? Now over here, as soon as this egg is released, what we will do the next point is we will apply this artificial insemination karenge. Okay, so over here after this production you can say that artificial insemination is done. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, या तो फिर नेचुरल ब्रीडिंग या नेचुरल मेटिंग भी यहाँ पे करवा सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के बुल से या फिर मेल से. ओके, सो यू कैन से दैट नेचुरल ब्रीडिंग कैन ऑल्सो बी डन, बट दिस इज मोर फेवरेबल बिकॉज इट गारंटीज, राइट? सो ये नेचुरल ब्रीडिंग करवा सकते हैं,
बाय exotic bull या good quality bull. So after some time fertilization होगा and then it will lead to the production of, after fertilization क्या होगा, it will lead to the production of 8 to 32 cell stage. It will produce 8 to 32 cell stage. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सीमेन में बहुत ज्यादा स्पर्म्स होंगे, ठीक है, तो मल्टीपल हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इतने एग्स तो है ही और हम स्पर्म्स भी डाल रहे हैं, तो इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल एम्ब्रियोज. ओके, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि हमें एक एम्ब्रियो अगर वो खुद फीमेल में रखना है तो हम रख सकते हैं, बाकी के एम्ब्रियो इज नॉन सर्जिकली रिमूव्ड. ओके, हाउ इट इज रिमूव्ड, नॉन सर्जिकली, रिमेंबर, मतलब कोई इंसिजन ऐसे नहीं करने में आता, इट इज रिमूव विद द हैंड. ओके, सो यू कैन से इट इज रिमूव नॉन सर्जिकली. सो मल्टीपल एम्ब्रियोज आर प्रोड्यूस्ड. सो फ्रॉम दिस लेट्स से हमने वन एम्ब्रियो एज इट इज वो फीमेल में रखा, इसी काव में रखा, और रेस्ट एम्ब्रियो इज रिमूव्ड नॉन सर्जिकली. रिमेंबर, इट इज रिमूव्ड नॉन सर्जिकली. सो इस एम्ब्रियो को हम क्रायोप्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं बाय द सेम मेथड in the liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या तो फिर हम किसी और फीमेल में इसे हम डाल सकते हैं. लेट्स से कि वो दूसरी काव में हम डालेंगे, व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी अ सरोगेट मदर, राइट. सो रेस्ट एम्ब्रियो इज रिमूव्ड सर्जिकली, आइदर दे आर स्टोर्ड बाय क्रायोप्रिजर्वेशन, और हम कह सकते हैं कि दूसरी कोई सरोगेट फीमेल के अंदर इसे डाल दिया जाता है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अबाउट द मल्टीपल ओव्यूलेशन. यहां पे अगर 6 to 8 सेल अगर हमें ज्यादा लग रहा है तो हम ओवम भी उसकी कलेक्ट करके इसे भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम ओवा को भी कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, so what is done, I'll just repeat it once again. The first point is फीमेल जो होती है एनिमल में, गुड क्वालिटी फीमेल, लेट्स से उसको हमने क्या किया, मल्टीपल ओव्यूलेट किया. कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन लगाया है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. उसके बाद में उसने मल्टीपल ओव्यूलेशन किया, मल्टीपल एग प्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियल हमने उसे इंसेमिनेट किया. चाहे तो हम उसके ओवा कलेक्ट करके साइड पे रख सकते हैं, साइड पे मतलब कहाँ, क्रायोप्रिजर्वेशन कर सकते हैं. ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया या तो फिर नेचुरल ब्रीडिंग करवाया उसी टाइम पे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 to 32 सेल के बहुत सारे एम्ब्रियो, लेट्स से 6 to 8 एम्ब्रियोज हमें मिले, उसमें से एक विल कीप इट इन द ओरिजिनल मदर एंड रेस्ट आर रिमूव्ड. इफ सुटेबल अदर फीमेल काउ इज अवेलेबल तो हम उसमें डाल देंगे. ठीक है, और अगर नहीं है तो वी कैन स्टोर दिस एम्ब्रियो इन बाय द मेथड ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे 6 से 7 बच्चे अगर प्रोड्यूस हो, ठीक है, कैटल्स के, तो हम उसका पूरा हर्ड, उसका ग्रुप इंप्रूव कर सकते हैं, हम उनके नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट मोइट. ठीक है, एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन.